Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to cover a very important question, and I believe this can actually come as a 5 or 6 marker in your exam. And these are the topics which we actually tend to ignore at the exam time because we believe यार ये तो बहुत easy है या ये कैसे आ सकता है या ये क्यों आएगा मतलब you do not give that importance to these topics. So I have made a very short video. I believe this video will be maximum of 10 minutes, and you can just watch it at 2x so that you complete a particular topic or you complete a particular past paper question in just 5 minutes. Okay? And this is the reason that I am covering these topics which are very ignored at the exam time, especially when you have lots and lots of things to do and you don't have much time. ठीक है, आपके ऊपर इतना burden होता है कि यार you always tend to do the important questions first and you tend to ignore these things, but in just 5 minutes you will be able to cover this particular question. And if you have actually watched this particular video तो आपको exam time में अगर ये question आता है तो you will be very confident about attempting that particular question. ठीक है. Now, without wasting further time, let's move on to the question, that is direct investing versus indirect investing. This was a past paper question, and as I was going through few past papers, I saw this as a 5 marker in that particular attempt. That's the reason I am covering this today. So before we actually go on difference directly, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है. डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से तुम्हें मतलब अगर नेम से ही मैं पूछूं कि क्या समझ में आ रहा है, सो वी विल से कि यार डायरेक्टली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर इज नो मिडिल मैन इन बिटवीन. राइट, यू आर वेरी मच राइट. Let's say you are an investor and you have 10,000 rupees. Okay, I believe now you are a BCom honor student, third year student हो. ठीक है, आपके पास कुछ कुछ नॉलेज है एंड यू हैव अ पॉकेट मनी ऑफ 10,000 एंड यू डिसाइड कि यार आज पैसे इन्वेस्ट करते हैं. अब आपके पास थोड़ा टाइम भी है तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो. यू स्टडी अबाउट फ्यू शेयर्स, यू स्टडीज अबाउट फ्यू बॉन्ड्स. ठीक है, क्या ट्रेजरी बिल्स, इतने एडवांस में नहीं जाते अभी, बट हम जनरली एज अ स्टूडेंट स्टॉक्स में करते हैं या आजकल बिटकॉइंस. So we are investing our savings directly, right? हमने किसी मिडलमैन की हेल्प ली नहीं, हमने किसी की हेल्प नहीं ली, हमने ये खुद अपना पोर्टफोलियो बनाया कि 10,000 मुझे कैसे इन्वेस्ट करने हैं. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. ठीक है, इफ वी रीड द डेफिनेशन तो ये क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स buying and selling of securities by the investor themselves. So in other words, I can say कि अपना पोर्टफोलियो अपना इन्वेस्टर खुद ही कर रहा है. ठीक है, उसे कब बेचना है, उसे कब खरीदना है. So all the decisions regarding the securities, regarding the investments, the investor is taking himself. ठीक है. Now it turns out कि यार तुम ना 25 years के हो. ठीक है, एंड तुम एक जॉब में लग गए हो, लेट्स से यू आर इन EY. ठीक है, एंड अब तुम्हारा 10 to 5 जॉब होता है एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है यार कि तुम ना सारी सिक्योरिटी स्टडी करो एंड फिर एनालाइज करो. ठीक है, तो व्हाट यू डू, यू हैव टुडे 10,000. instead of investing directly in the securities, stocks, shares, bonds, you are actually approaching a middleman. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो. दैट इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपका पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी ऑन योर बिहाफ. ठीक है, सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग. आपने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं किया, आपने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू किया. ठीक है, तो investor may not directly invest and manage portfolios, rather they buy the units of funds that hold various type of securities on behalf of investor. Okay, so this is a type of example that you can actually take while quoting the definition of indirect investing in your exam.
नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं. इसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन ऑर्डर टू कवर द प्रैक्टिकल पार्ट 2, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्विकली. लेट्स से यू आर एन इन्वेस्टर, आपके पास 10,000 रुपए आज, ठीक है. अगेन यू आर 25 ईयर्स, यू डोंट हैव इनफ टाइम. आपने क्या किया, आप फंड मैनेजर के पास गए, ठीक है. लेट्स से दिस इज अ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है. आपने कहा यार मेरे पास 10,000 रुपए है, प्लीज इन्वेस्ट कर दो, ठीक है. अब म्यूचुअल फंड कंपनी के ने कहा कि यार हम ये फ्री में तो नहीं करेंगे, तो आप जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करो, आप या तो 2% दे दो, either they will quote like this or they will say you pay us 2,000, मतलब fixed interest, ठीक है. not interest but it is a kind of a fees, management fees that they take. Then on behalf of you they will be choosing the securities. Now this is not just you who will be investing, there will be billions or there will be lakhs of investors who are willing to do same just like you, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, अ फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा है, अब वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा. क्या फंड मैनेजर अकेला होता है, नहीं. ये पूरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जहाँ पे एक्चुरियल्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग का जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है. सो दीज ऑल आर द प्रोफेशनल पीपल हु विल एनालाइज सिक्योरिटीज, ठीक है. उनका डेली का काम होता है ये सब. उन्होंने एनालाइज किया सिक्योरिटीज, जनरेट हुए रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स दे दिए, ठीक है. बट लेट्स से अगर सिक्योरिटी में 20% रिटर्न्स जनरेट किए, दे विल नॉट गिव यू 20%. नहीं तो उनका घर कैसे चलेगा, राइट. दे विल प्रोवाइड यू विद 18% और 15% ऑफ रिटर्न, ठीक है. तो आप खुश होते हो कि बिना मेहनत करे, जस्ट पेइंग बाय द मैनेजमेंट फीस, you are able to earn 15%. So this is how the mutual funds company work. We will be covering this particular topic once again in a new video, but this was just to explain the indirect investing. Okay, now coming to the main question, the reason I made this particular video was to explain this particular question, the direct investment versus indirect investment. Now that we are clear with the meaning कि क्या मतलब है इन दोनों का, तो हम इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइड रेंज ऑफ चॉइस. अगर आप खुद पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव वेरियस सिक्योरिटी चॉइसेस फॉर योर पोर्टफोलियो. बट अगर आप इनडायरेक्ट कर रहे हो तो यार आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रोफेशनल्स डिसाइड करेंगे. योर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो एक्चुरियल्स और सब हर कोई बैठा है वो डिसाइड करेगा, आप नहीं करोगे डिसाइड. नाउ देयर इज अ डायरेक्ट लिंक कि कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एंड कंपनी, नॉट कंपनी बट या द सेवर इज इन्वेस्टर एंड दिस इज द इन्वेस्टी. तो दोनों के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट लिंक है. बट यहाँ पे कोई लिंक नहीं होता, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ उनका लिंक होता है, राइट. सो दिस इज लाइक दिस. You are not directly connected with this, but here you are directly connected, ठीक है. अब रिटर्न्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि यार आपने पोर्टफोलियो कैसा बनाया है, जिस कंपनीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनका प्रॉफिट्स कैसे है, उसके ऊपर आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे. बट यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, हाउ एफिशिएंट दे आर, राइट. अल्टीमेट डिसीजन कब खरीदना है, कब बेचना है, ये आपके ऊपर है इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. बट व्हेन इट कम्स टू द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी. सो जब भी आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, थिंक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स. दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ. यहाँ पे आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, राइट, या ब्रोकरेज फीस होती है, बट यहाँ पे आपको मैनेजमेंट फीस भी देनी पड़ेगी. एक बात बताओ, आपके पास 10,000 की सिक्योरिटीज है, अब इसको एनालाइज करके दूसरी सिक्योरिटीज में शिफ्ट करना, so this process sometimes become expensive and आप इतनी जल्दी जल्दी स्विच नहीं कर पाते. 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, एंड समटाइम्स पैसा डी इन्वेस्ट करना मे बी एक्सपेंसिव हो, ठीक है.
बट यहाँ पे वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतने ज्यादा पूल ऑफ फंड होता है. इट इज नॉट जस्ट 10,000, इट इज लाइक लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी दे आर इन्वेस्टिंग. तो यहाँ पे स्विचिंग बहुत ज्यादा इजी बन जाती है क्योंकि उनका काम ही यही है और उनके पास नॉलेज भी, राइट. सो दिस इज द proper answer that you have to write in a 5 marker. ठीक है. I have provided you with 6 points so that अगर 5 marker आए so you can easily write down 5 points. ठीक है. तो अगर आपका एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, आप क्या लिखेंगे? बेसिस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. First basis would be your meaning. Second basis would be your choice of choice of investment. Third basis would be your link. Fourth basis would be your dependability of returns. Fifth would be your decision making. Sixth would be your cost involved. Seventh, the flexibility. Okay? That's all for this particular video. Thank you so much for watching my video. Do not forget to subscribe to my channel and make sure that you like this video and comment below. All the best for your exam. Keep watching, keep subscribing, and keep sharing with your friends. Thank you.